Hello friends. Today we will discuss about the equivalence relation again, but we have to discuss some important points for equivalence relation like word relation, identity relation, and universal relation. After that, we will discuss about the different parts of the symmetric relations and then partial order relation, right? So this video is very important for the competitive examination, and these relations are useful in the logics and Boolean algebra, gates, computational mathematics, discrete mathematics, and hash diagram also. So there are the many streams where we can use these type of relations like partial order relation and equivalence relation and strict partial order relation and non-strict partial order relation. So there are many kind of relations which are useful in different streams of mathematics, right? So we are starting with the word relation. What type of this relation is, right? So first of all, word relation. What is word relation? Phi, empty set, है ना? ये हमने पहले पढ़ा था. That is an empty set which contains nothing. That is called empty set. Now, if phi is any relation, now if phi is any relation which is defined on set A cross A, then we know phi is always the subset of A cross A. जो phi होता है वो हमेशा A cross A का subset होता है. And this is the smallest equivalence relation. It is the smallest equivalence relation. देखिए इक्विवेलेंस में मैंने आपको बताया था वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं. अब देखिए रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है? A has relation with itself for all A belongs to any set A. तो A सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए. बट आप देखिए फाइव के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, है ना? तो फाइव जो है इट कंटेन्स नथिंग, इट कंटेन्स नथिंग, बट इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. एंड इट शोज दैट कि if there is no any element, तो how we can check the relationship? Every element is related with itself. So we declared that it is empty, therefore it is an reflexive relation. एंड फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन हम क्या कहते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होगा. जब यहां कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हाउ विल यू डिफाइन द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी? एंड सिमिलरली फॉर द ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब देयर इज द नेगेशन स्टेटमेंट फॉर ऑल reflexive, symmetric, and transitivity. So we declared that phi is an equivalence relation because it contains nothing. So we cannot define any kind of relation on this set. Therefore, phi is a smallest equivalence relation because it follows R is subset of A cross A, right? And it is the smallest equivalence relation. तो आपको ध्यान रखना है phi is a smallest equivalence रिलेशन, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारा रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन. क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन. देखिए इसमें भी क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? इफ आर इज एनी रिलेशन, आर इज एनी रिलेशन विच डिफाइन ऑन ए क्रॉस ए एंड आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए. मतलब जो रिलेशन है वो खुद किसके इक्वल होना चाहिए? ए क्रॉस ए के कंप्लीटली इक्वल होना चाहिए. ठीक है? तो वो हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा सेट होगा, राइट? तो सबसे बड़ा सेट होगा. इसका मतलब आर रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कब कहेंगे? जब सारे के सारी पॉसिबिलिटीज ए क्रॉस ए की वो कंटेन करेगा. तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा. ठीक है? तो इस टाइप का जो रिलेशन है आर को बेसिकली हम किससे शो करते हैं? यू से, बिकॉज यू इज द यूनिवर्सल रिलेशन एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए. एंड दिस इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इससे बड़ा कोई और रिलेशन नहीं हो सकता. यूनिवर्सल सेट के बारे में भी हमें पता है, इसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं. सपोज वी आर टेकिंग सम एग्जांपल. सपोज ए इज अ सेट, इट कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स, राइट?
1 2 3, it contains 3 elements and we are defining A cross A. So what will happen? A cross A has 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। अब यहां पर कितने हैं? 9 एलिमेंट्स हैं और ये सारे कौन से हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। और इनके अलावा जो है देखो 2 1 है तो 1 2 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश हो रही है। और अगर हम ट्रांसिटिविटी की बात करें तो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, यस 2 3 है, 3 1 है तो 2 1 भी है। तो इस तरीके से सारे के सारे पेयर्स अगर आप चेक करेंगे तो इट शोज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और A क्रॉस A के इक्वल है। और इसको हम क्या लिखेंगे? U इज इक्वल टू A क्रॉस A, मतलब U के अंदर ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा कैसा होता है? इट इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आप देखिए फाई जो होता है वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है विच होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टीज बिकॉज फाई हैज नथिंग, है ना। और उसके बाद यूनिवर्सल क्या है? इसमें सब कुछ है। एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A इज कंटेन्ड बाय यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है, लाइफ में भी अगर हम देखें, लाइफ के अंदर जो या तो लोअर कैटेगरी मतलब जिसके पास कुछ नहीं है वो इंसान बड़ा सुखी है ना। और जिसके पास सब कुछ है वो इंसान भी सुखी है, फाइनेंशियली तो सुखी है ही, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट जो है इट कंटेन्स एवरीथिंग, इट इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इट हैज नथिंग। So it follows the negation statement of every symmetric, reflexive and transitive property. Therefore, it is a smallest equivalence relation, right? तो हमने आपको बताया कि फाई जो है वो भी इक्विवेलेंस है और जो लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन है वो भी हमारा कैसा है? यूनिवर्सल सेट है, वो भी यूनिवर्सल रिलेशन है, वो भी कैसा होता है? दैट इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद एक हमारा होता है आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिंपल सी बात कर रहा हूं आपसे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन इज नथिंग बट इट इज identity relation. What is identity relation? Identity relation contains a type of pairs where A is the element of A. IA means identity relation on set A. ये इसको डिफाइन करने का तरीका होता है। I of A मतलब identity relation defined on the set A is given by AA such that A is the element of set A। मतलब जितने भी set A के एलिमेंट हैं वो सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। सिंपल, सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, और वो हमेशा इक्विवेलेंस की कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया तो इसके अंदर जो मैंने आपको डायगोनल एलिमेंट शो कर रखे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से शो कर रखे हैं? ये वाले शो कर रखे हैं मैंने। तो ये सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर मैं इस रिलेशन में राइट करूं आई ए में, दैट इज 1 1 2 2 एंड 3 3, तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट आपको लिखने हैं, इसके अलावा कोई और एंट्री आपको राइट नहीं करनी। तो सच काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आप कहोगे सर आपने अभी थोड़ी देर आपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो ए हैज रिलेशन विद इटसेल्फ की प्रॉपर्टी है वो किसकी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। यस डेफिनेटली है, इट इज ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। बट जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है ना। जैसे मान लो 1 1 2 2 3 3 के अलावा भी उसके अंदर कोई एंट्री हो सकती है। लाइक मैंने 1 3 ऐड कर दिया, 5 1 ऐड कर दिया, 4 1 ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मैं उसके अंदर कोई और भी एंट्री ऐड कर सकता हूं। बट identity relation में it is strict that it contains those pairs in which every element has relation with itself only। ठीक है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो A it contains A type of elements where A is the element of A। तो इस टाइप के एलिमेंट इसके अंदर अगर होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपने पढ़ा। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है बिकॉज आपको पता है कि सेट के अंदर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो आप 1 1 के ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी चेक कीजिए, सिमेट्रिक भी करिए, ट्रांसिटिव भी करिए। इट इज श्योरली ट्रू बिकॉज एक ही एलिमेंट है, फर्दर किसी के साथ रिलेटेड ही नहीं है, तो इसलिए ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश हो गई। सिमेट्रिक तो है ही क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव है वो सिमेट्रिक तो है ही। ठीक है, तो इसका मतलब A हैज रिलेशन विद B, B हैज रिलेशन विद A, वी गेट 1 1 अगेन। ठीक है, तो इसलिए ऑल दीज pairs which are self related, ठीक है, all the ordered pairs which are self related
follows all the properties. Therefore, this identity relation is reflexive, symmetric as well as transitive. तो आपने सीखा कि वाइड रिलेशन जो होता है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और तीसरी बात हमने कौन सी की, यूनिवर्सल रिलेशन, वो भी हमेशा कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, राइट। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वी आर टेकिंग सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, यूनिक कॉन्सेप्ट्स विच विल क्लियर मोर अबाउट द रिलेशंस, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा, इसको आपने ध्यान रखना है। और एक हमारा होता है एंटी सिमेट्रिक। तो आई एम राइटिंग थ्री, दैट इज सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, उस डिफरेंस को हमने क्लियर करना है। सबसे पहले बेसिकली है क्या, तो सिमेट्रिक रिलेशंस कौन से होते हैं आपको पता है, इफ AB pair belongs to R means BA pair also belongs to R। ये हमें जो फर्स्ट कंडीशन है ये लेकर चलनी होती है, और उससे हमें सेकंड कंडीशन क्या करनी होती है, प्रूव करनी होती है। अगर ऐसा हो जाता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। अगर आप प्रूव कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं असिमेट्रिक। असिमेट्रिक से हमारा मतलब क्या है, अगर ए बी टाइप का पेयर आर से बिलोंग करेगा तो बी ए टाइप का एलिमेंट आर से बिलोंग नहीं करेगा, बी ए टाइप का एलिमेंट आर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। जनरली लाइफ में ऐसा ही होता है, हमने किसी को अपना दोस्त मान लिया, सामने वाला आपको दोस्त नहीं मान रहा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, असिमेट्रिक रिलेशनशिप होती है। तो ए हैज रिलेशन विद बी बट बी का रिलेशन ए के साथ नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा होता है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी टाइप का पेयर आर से बिलोंग करता है, बी ए टाइप का एलिमेंट आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, दैट इज द डिस्टिंक्ट केस, ठीक है। इसका इनसे कोई कंसर्न नहीं है, इसमें इसका उल्टा हो गया बस। और यहां पर क्या है, ए बी टाइप का पेयर आर में है, बी ए टाइप का पेयर आर में है, तो ए बी के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, इसका मतलब वो दोनों चीजें सेम है। तो बेसिकली आई कैन से इट इज अ कॉन्सेप्ट लाइक अद्वैत। आपने अद्वैत पढ़ा होगा, तो अद्वैत जो है ना वो यही चीज है, मोनिस्टिक, है ना। मोनिस्टिक, मोनिस्टिक मतलब स्पिरिचुअल वर्ड में छोटा सा वर्ड यूज किया जाता है अद्वैत, जिसका मीनिंग बहुत बड़ा है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि जो पत्ता है, ठीक है, पत्ता किससे बना है, पत्ते में पानी भी है, पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया भी चल रही है, और भी बहुत सारी चीजें पत्ते के अंदर है, ग्रीन भी है, क्लोरोफिल की मात्रा भी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें उस पत्ते के अंदर है। तो बेसिकली वो जो है ना, ये पत्ता है, फ्रूट्स हैं, फल हैं, ये सारी की सारी चीजें एक ही है, पानी है ना, आकाश है, धरती है, ये सब कुछ एक है। तो दैट इज कॉल्ड अद्वैत मत, ठीक है। अद्वैत मीन्स मोनिस्टिक। तो यहां पर बात हो रही है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, तो ए बी के इक्वल होना चाहिए। ए बी के इक्वल मतलब ए और बी दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेम है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, गहरा दोस्त है, मैंने उससे कहा कि यार तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरे ने कहा यार वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों एक ही हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंडशिप, ठीक है। तो दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो हियर सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक तो ठीक है, बट एंटी सिमेट्रिक इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो अब मैंने ये रिलेशंस आपको क्यों बताए, क्योंकि जो लॉजिकल मैथमेटिक्स है उसके अंदर इनकी बहुत अहमियत होती है, इनको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, स्पेशली जहां पर आपको डिसीजन लेने होते हैं, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की बात आती है, लॉजिक्स की बात आती है, तो वहां पर इन रिलेशंस को भी काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की। किसकी बात करेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की। देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एक जनरल वे में अगर कहा जाए
तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस तो आप पढ़ चुके हैं, अब इक्विवेलेंस के बाद हम बात कर रहे हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है रिफ्लेक्सिव। देखिए इसके बारे में आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है एंटी सिमेट्रिक। कौन सी होती है? एंटी सिमेट्रिक। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है ट्रांजिटिव, राइट? ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन इन तीनों बातों को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक मैंने आपके सामने लिख ही दिया है, और तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव आपको पता है। तो तीनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखिए जब हम हायर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है? एक होता है स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और एक होता है नॉन स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब ये नॉन स्ट्रिक्ट जो है वो यही है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो नॉन स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में इन तीनों प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखते हैं कि इस टाइप की कंडीशन कौन सेटिस्फाई करता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। सपोज हमने लिखा आर इज द रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑन सेट ऑफ रियल्स, ठीक है? आर एक रिलेशन डिफाइन किया और इस रिलेशन का नाम क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑन द सेट ऑफ रियल्स। तो रियल्स हमने क्या ले लिया? ए सेट ले लिया, है ना? और आर रिलेशन ले लिया उस जो कि ए सेट पर डिफाइंड है, रियल्स पर डिफाइंड है। अब मैं चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देखिए अगर मैं राइट करता हूं ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए for all a belonging to reals, it is absolutely true because greater than or equals to मतलब there is an option, either a is greater than a or a is equals to a. तो a is equals to a is correct, therefore it is a reflexive relation, right? उसके बाद मैं बात करता हूं एंटी सिमेट्रिक की। तो अगर एंटी सिमेट्रिक के बारे में बात करता हूं तो देखिए एंटी सिमेट्रिक का मतलब इफ a is greater than equals to b and b is greater than equals to a, it means a is equals to, sorry, हाँ yes, a is equals to b। तो क्या हुआ? if a is greater than equals to b and b is greater than equals to a, it means a must be equals to b। a b के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों बातें एक साथ अगर एग्जिस्ट करती हैं। देखिए यहां पर क्या बताया? ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, तो इसका रिजल्ट जो क्रिएट होना चाहिए दैट मस्ट बी ए इक्वल्स टू बी। अगर ऐसा हो जाता है तो वो रिलेशन कैसा होता है? हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अद्वैत होता है, ठीक है? तो a is greater than equals to b, b is greater than equals to a implies that a is equals to b is correct, absolutely correct. Therefore, it is anti-symmetric relation also. And third one is transitive. It is obviously true. Transitive के लिए क्या है? If a is greater than equals to b and b is greater than equals to a, sorry, b is greater than equals to c, it implies a is greater than equals to c। अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a c से बड़ा होगा, ये बात पक्की है ना? और इसी तरीके से अगर a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a c के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। तो हमने क्या देखा भाई? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी ट्रू हो रही है ना? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी ट्रू हो रही है और ट्रांजिटिव, सॉरी, एंटी सिमेट्रिक ट्रू हो रही है और साथ में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। तो तीनों बातें एक साथ प्रूव हो रही है। तो हम कह सकते हैं द रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल्स। और एक बात आपको और बता दूं इसके साथ, और जो ऐसे में सेट ऑफ रियल्स होता है उसको बोला जाएगा पोसेट। व्हाट इज पोसेट? पोसेट होता है पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, वो सेट जिस पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मान लो आपने एक रिलेशन रियल नंबर्स पे डिफाइन किया हुआ है, तो अगर रियल नंबर्स का सेट अंडर द गिवन रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको बोलते हैं हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है? तो ध्यान रखें, और जो रिलेशन है वो तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, पर जो सेट इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है उस सेट को हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। इन शॉर्ट वी से इट इज पोसेट। क्लियर? तो आफ्टर दैट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मैंने आपको एक बात और भी बताई कि इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? नॉन स्ट्रिक्ट पार्शियल
ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, अब नॉन स्ट्रिक्ट तो हो गया, अब ये इसका मतलब स्ट्रिक्ट भी जरूर होगा, जब नॉन स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट भी जरूर होगा। तो स्ट्रिक्ट क्या होता है देखते हैं, स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, देखिए स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करने से पहले एक बात हम और कर लेते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी वो क्या है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जितने भी ए सेट के एलिमेंट हैं वो सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। एक प्रॉपर्टी और होती है हमारी इररिफ्लेक्सिव। व्हाट इज इररिफ्लेक्सिव? इररिफ्लेक्सिव होती है कि ए टाइप का एलिमेंट आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ए हैज नो रिलेशन विद इटसेल्फ, ए हैज नो रिलेशन विद इटसेल्फ। अगर ऐसा क्राइटेरिया कहीं पर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, इररिफ्लेक्सिव, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए हैज नो रिलेशन विद आर, राइट। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसमें इस बात को क्लियर करता हूं। और तीसरा मैंने आपको बोला कि अगर नॉन स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट भी होगा, तो स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन। अब if it follows three properties, one is irreflexive, second is asymmetric, not antisymmetric, asymmetric relation, and third is transitive relation। अगर ये थ्री क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएं तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में ये प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करता है, मान लो मैंने डिफाइन किया द रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन ऑन सेट ऑफ रियल्स, रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन ऑन सेट ऑफ रियल्स। अगर मैं इसकी बात करता हूं और वन बाय वन टेस्टिंग करता हूं तो देखिए आप इररिफ्लेक्सिव के अंदर ए है, ए इज ग्रेटर देन ए इज टोटली रॉन्ग, मतलब ए इज नॉट ग्रेटर देन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल्स, मतलब ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो ए इज नॉट ग्रेटर देन ए मतलब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव वो प्रूव नहीं हो रही। कौन सी प्रूव हो रही है, दैट इज इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑन द रिलेशन ग्रेटर देन ओनली, राइट। उसके बाद असिमेट्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो ए ग्रेटर देन बी डज नॉट इंप्लाई बी ग्रेटर देन ए, मतलब अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ए बी टाइप का पेयर आर में है तो बी ए टाइप का पेयर आर में नहीं हो सकता। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी, नो डाउट, है ना। ए बी से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो ए बी सी से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली इट इज ट्रू। तो हमने क्या देखा कि जो रिलेशन है वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, जो ग्रेटर देन का रिलेशन है वो थ्री प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, दैट इज इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, असिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो बेसिकली जनरली जो हम 12th लेवल तक बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करते हैं, तो वहां पर सिंपल एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आपसे पूछा जाता है, तो वो सिंपल ही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया बाय डिफॉल्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है तो आप वही बताएंगे, द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, बट फिर हायर के अंदर जब हम जाते हैं तो इसको दो पार्ट में डिस्टिंग्विश कर देते हैं, दैट इज नॉन स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड अनदर इज स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। नॉन स्ट्रिक्ट कंटेन्स रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कंटेन्स इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किए रिलेशंस के, तो ये सभी आप देख सकते हैं। और अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेकर भी एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं, सपोज मेरे पास एक ये एग्जांपल है, ए मैंने एक सेट डिफाइन किया, इट कंटेन्स 1 2 3 एलिमेंट एंड आई एम डिफाइनिंग ए रिलेशन आर विच कंटेन्स 1 1 2 2 एंड 3 3 एंड 1 2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, तो आप देखिए इसमें ये तीनों पेयर्स हैं, रिफ्लेक्सिव है ये, है ना। सिमेट्रिक की बात करता हूं तो 1 2 इसमें है पर 2 1 इसमें नहीं है, 1 2 है पर 2 1 इसमें नहीं है ना, 2 1 नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। पर देखिए असिमेट्रिक तो है ही,
है ना। तो दिस रिलेशन इज असिमेट्रिक रिलेशन। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कोई रिलेशन असिमेट्रिक है या नहीं है। तो 1-2 है, 2-1 नहीं है, इसका मतलब वो असिमेट्रिक है। ठीक है। एंटी सिमेट्रिक के लिए 1-2 है, 2-1 भी है, तो 1 और 1, है ना, 1 और 2 इक्वल हो जाए, ये तो हो नहीं सकता, है ना। 1 और 2 कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो इसलिए ध्यान रहे कि वो हर जगह पर वैलिड नहीं होगा। जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू में वैलिड था। सबसेट ऑफ, अगर आप चेक करेंगे सबसेट ऑफ, तो जो हमने सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा था, तो सबसेट ऑफ का रिलेशन भी अगर डिफाइन किया जाएगा तो वो भी हमारा कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, दैट इज नॉन स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं जिसमें हम एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, इररिफ्लेक्सिव, है ना, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इन सबको वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द न्यू टॉपिक्स। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।